Everyone, last time we were talking about democratic and bureaucratic attitude, है ना? Okay, where we left, कुछ लिख रहे थे शायद, कुछ लिख रहे थे शायद. Problem of attitude in administration. Okay, measures to address the problem. Measures to address the problem of attitude. Measures to address the problem of attitude. It require both formal and informal interventions. Formal and informal interventions. Formal interventions like first, reward and punishment. Reward and punishment, that is ethical behavior. Ethical behavior should be recognized, and rewarded through appreciation, comma, promotion or awards. And or awards. While unethical conduct must be followed by disciplinary action. Comfortable with this? Formal intervention is needed. The recent incidents of Indore, where around 35 people lost their life was seen as administrative murder. Administrative murder. And no disciplinary action, and no major disciplinary action was taken against the administration. No disciplinary actions were taken against administration. You should write it entirely, that recent incidents of Indore where 35 people lost their life due to consumption of contaminated water. That we have missed
why they died. You should write it wholly. No administrative. आपका आंसर नहीं आया आज तक? नहीं नहीं, मेरे को चाहिए नहीं। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। आपने सवाल भी नहीं बताया कि दिस वॉज द क्वेश्चन इन विच आई एम स्ट्रगलिंग. सो शी अप्रोच्ड मी, सर देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस एंड आई एम नॉट एबल टू राइट इट. मैंने कहा पहले लिख कर तो दो, तब तो पता चले क्या सवाल है. ना तो आज तक लिखकर आंसर आया, ना ही मुझे प्रश्न पता चला कि कौन सा प्रश्न है जो लिखा नहीं जा रहा है. ये तो वही बात हो गई कि किसके कारण 35 लोग मरे, इसकी खोज जारी है. ठीक है, मिल नहीं पाया. एनीवे, while on other hand, the same administration has been rewarded multiple time, for their achievement regarding cleanliness and hygiene. And then you can write ha ha ha. लिख मत लेना. The same administration has been rewarded multiple times for cleanliness and hygiene. I think I told you about smart cities. हमने इस क्लास में बात किया होगा. Indore is a smart city for stupid people. People says it is smart city. What kind of smartness we people are carrying? We have seen smartness in the last 3 months. People are crying for water. And our mayor said that आप बता दो पानी कहाँ से आएगा. He was saying आप बता दो पानी कहाँ से आएगा. He was admitting there is no water in the city. The demand is 120 unit of water. Availability is 100 unit of water. So there is a shortage of 20 unit. So we are circulating here and there. एक साथ सबको नहीं दे सकते. Then sir, why we are smart? We are smart for lights. Are you serious? When Global Investor Summit is taking place, the entire city is converted into a bright. Lights on the roads, trees पे lights, जितने बचे हैं उन पे lights, बाकी तो निकाल दिए सारे. They transplanted the old trees from Indore to ये DAVV. आपने देखा होगा DAVV में there is a forest of thoot. Do you know what is thoot? Dead plant is called thoot. इन्होंने कहा हमने पेड़ काटे नहीं, ट्रांसप्लांट किया. हजारों पेड़ यहाँ वहाँ से काट के DAVV में लगा दिए. एक पत्ती निकल जाए उन पेड़ों से, सूखे ठूट खड़े वो. बट वी आर स्मार्ट, वेरी स्मार्ट. On what parameter we are smart? That we have to see what is the definition of smartness. Why Indore is a smart city? Because we are operating a metro outside the city whose operational cost is 8 lakh rupees a day. 8 passengers are not traveling in that. 8 लाख रुपए दिन का उसका कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ मेट्रो. 8 passengers are not using the metro. Smart city. Now मेट्रो वाला came up with a program कि आप अपनी शादी, पार्टी, बर्थडे, ये सब आप मेट्रो में कर सकते हो. 15,000 रुपीज विल बी द चार्ज. आपका बर्थडे हो, इफ यू वांट टू फील समथिंग स्पेशल, देन यू कैन प्लान. 15,000 रुपया 2 घंटे का चार्ज है उसमें. सो यू कैन कट केक्स इन मूविंग मेट्रो. You can have wedding parties in moving metro. Now people will plan honeymoon in moving metro. अरे 8 लाख रुपया दिन का खर्चा हो रहा है यार. 8 लाख रुपए दिन का खर्चा. तो कहाँ से आ रहा है पैसा? कहाँ से आ रहा है? स्मार्ट सिटी.
अगर मैं गलत नहीं हूँ, आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ बैचेस मिक्स बैठी है, बट डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में स्मार्ट सिटी का चर्चा तो बहुत बार आया है. एंड आई टोल्ड यू, वी आर वेरी यूनिक एंड वेरी स्मार्ट, बट वॉट काइंड ऑफ स्मार्टनेस इंदौर इज कैरिंग, दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, ह्यूज कंट्रोवर्सी. वी आर कटिंग फॉरेस्ट, हाँ, वी आर एलिमिनेटिंग वाटर बॉडीज, नो कुआ ऑन भवर कुआ, नो इमली का पेड़ ऑन 3 इमली, नो टैंक ऑन खाती वाला टैंक, एग्जिस्टिंग लेक्स उसको भी पी गए, बिल्डिंग से बना दी, इन नेम ऑफ ब्यूटिफिकेशन पैनल्स लगा दिए तालाबों के आसपास, नो सिस्टम ऑफ वाटर रिचार्जिंग, हाँ, करोड्स ऑफ रुपीज वेयर इन्वेस्टेड इन BRTS कॉरिडोर, एंड नाउ व्हाट हैज हैपेंड, उसका कॉस्ट भी रिकवर नहीं हुआ, कॉस्ट भी रिकवर नहीं हुआ, एंड नाउ BRTS हैज बीन removed, and now we are coming up with flyovers. Now we are thinking now Indore will be the city of flyovers. Great. River has been cleaned entirely, मछलियां तैर रही है उसमें. कैसी स्मार्टनेस है. कुछ लोग पागल हो गए हैं जो बाहर से आते हैं ना, मध्य प्रदेश के गांव देहात से आते हैं, वो इंदौर को देखकर पागल हो जाते, इंदौर इंदौर. उनके लिए इंदौर नहीं, लॉस एंजलिस हो गया इंदौर. पीपल आर राइटिंग पोस्ट. एक बार जो इंदौर आ जाता है फिर उससे इंदौर नहीं छूटता. देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे मैं, ये सब बाहर वाले गधे ही हैं जो लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि तुमको यहाँ मिली है अनकंट्रोल्ड फ्रीडम, और पिताजी पैसा तो भेज ही रहे हर महीने, पढ़ाई चल रहा है आपका, इसलिए नहीं छूट रहा इंदौर. एक बार पिताजी पैसा भेजना बंद कर दे, अब इसमें सस्टेन करके दिखाओ तो अकल ठिकाने आ जाएगा. Let's go in the market, earn 15,000 rupees, earn 20,000 rupees. Could you afford a life, a healthy life? Could you afford in 15-20,000 rupees? क्या पूरा जीवन हॉस्टल में रह सकते हो क्या 8,000 रुपया देकर? पूरा जीवन 8,000 देकर हॉस्टल में रह सकते हो क्या? In 8,000 you are having food, you are having apartment, but you can't spend your entire life in hostel. So just go in the market, earn 20,000 rupees, and now show the people that I could live a luxurious life in 20,000 rupees. This machine will get fixed. So for these people, इंदौर छूटने जैसी जगह नहीं है. You must know अदरक का भाव 80 रुपया पाव. 320 रुपए किलो अदरक है. आर यू क्रेजी? आज सुबह मैंने 300 रुपए किलो सेवफल रिजेक्ट किया. अरे बहुत महंगा फल है यार. बगल में सब्जी वाला कह रहा था 320 तो मेरे यहाँ बिक रहा अदरक. मैंने कहा 2 केले देते 10 रुपए के. यू कांट अफोर्ड यार. 320 रुपए का अदरक किलो भर, कैसे जीवन चलेगा? 320 रुपीज पर केजी अदरक. आर यू सीरियस? जैन लोग तो खुश होंगे, मुस्कुरा रहे हैं. जड़ नीचे लगता है वो तो है ही तामस. इन्हीं लोगों को देखकर तो लिखा है वो मुहावरा, अदरक बंदर क्या जाने अदरक. क्योंकि ये लोग तो कह देंगे तो जमीन के नीचे लगता है, हमको तो मतलब नहीं, खाते नहीं हम. खैर इन्हीं मूर्खों को लगता है इंदौर इज अ स्मार्ट सिटी, क्योंकि उनको लगता है कि रात को 2 बजे तक लाइट जल रही है तो इट्स अ स्मार्ट सिटी. डू यू थिंक इट्स अ स्मार्ट सिटी? तुम्हारे गांव में 8 बजे सब सो जाते हैं, दैट इज अ ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल. यहाँ रात को 2 बजे तक लाइट जलती है तो इट्स अ स्मार्ट सिटी. ऐसे तो मुख्यमंत्री को लगा दे लाइट, रात भर चलता रहेगा मोहन यादव. स्मार्ट CM, वेरी स्मार्ट. ऐसा हर कोई स्मार्ट बन जाए फिर तो. अगर लाइट से ही स्मार्ट है तो फिर तो बनी जाए. अभी पिछले हफ्ते खबर है, बच्चे के पैर फिर से कुतर गया चूहा MY में. हर साल वहां के चूहे भी ना बच्चों के पैर ही खाते हैं. उनको भी अजीब स्वाद चढ़ा है जबान पे. हर साल होता है, हर साल बहुत केसेस होते हैं ऐसे, खा जाते हैं बच्चों के पैर कुतर जाते हैं चूहे. इधर बच्चा पैदा हुआ, बगल में बिल्ली के बच्चे भी घूम रहे हैं, पता चले वही काट ले गए बच्चे को. इट हैज हैपेंड. वी आर वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट. On what parameter Indore is a smart city? It is a point of discussion. Only those people are saying Indore is a smart जो इंदौर के है ही नहीं.
वो बाहर से आते हैं, देखते 2 बजे तक लाइट जल रही है, स्मार्ट सिटी। तुम अपने गांव में भी लाइट लगा लो ना यार, स्मार्ट गांव हो जाएगा। और क्यों इंदौर स्मार्ट है? बीआरटीएस में घुटने तक पानी भरता था, बट इंदौर इज अ स्मार्ट सिटी। इंदौर इज अ स्मार्ट सिटी। ये तो शुक्र मनाओ कि इंदौर जो है थोड़ा पठारी इलाके पे, इसलिए बाढ़ नहीं आती, वरना सारी स्मार्टनेस बह के देवास पहुंच जाती है। स्मार्ट सिटी मिशन खत्म हो गया है पिछले साल। 100 स्मार्ट सिटीज बनानी थी, 100, और उसमें मध्य प्रदेश की 15 सिटीज वेर देयर, और उसमें सबसे टॉप पर इंदौर। बाकी शहरों का तो नाम भी नहीं ले सकते हम, किस किस्म का स्मार्टनेस है। आई यू गेटिंग दिस? यस और नो? इंदौर परफेक्ट एग्जाम्पल। 35 लोग मर गए, एक आदमी इसका जिम्मेदार नहीं मिल पाया अभी तक, एक आदमी जिम्मेदार नहीं मिल पाया। 35 लोग नाले का पानी पी के मर गए। आर यू क्रेजी? उन लोगों ने शिकायत नहीं की, शिकायत कर करके उनका फोन का बिल डबल हो गया, सोल्यूशन नहीं हुआ, नहीं हुआ सोल्यूशन। लेकिन कोई जिम्मेदार व्यक्ति भी नहीं मिला, और मंत्री जी घंटा बजाकर चले गए। हाँ, मंत्री जी का वीडियो वायरल हुआ था ना, नो डिसिप्लिनरी एक्शन वॉज टेकन। What I'm trying to tell you, until and unless political will is not there, until and unless political will is not there, ये reward and punishment could not work, reward and punishment could not work. I have been getting this, बीजेपी वालों एक तरफा डोमिनेंस है शहर में, और कांग्रेस वालों की बुद्धि तो वैसे ही भ्रष्ट हो चुकी है, बिल्कुल यूजलेस पीपल। एक व्यक्ति से मिला है, एनी वाज सेइंग, अरे वो सब मशीन का खेल है, अभी तक तुम इसमें ही पड़े हो कि मशीन का खेल है। यू मस्ट हैव करेज टू एक्सेप्ट योर डिफीट। आपने पेपर दिया, नहीं क्लियर हुआ, अरे करेज होना चाहिए, अरे नहीं हुआ, यू स्टार्टेड क्राइंग, यूपीएससी ने टफ पेपर दे दिया था, अरे तो तेरे से पूछ के देंगे क्या? एक्सेप्ट योर डिफीट। हाँ मेरे से नहीं हुआ, दैट्स इट, नथिंग रॉन्ग इन दैट। People commit mistakes in our country and they start justifying it. And I told you multiple time कि don't justify everything. कभी कोई आता है, लेट हो गए, और सर वो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। मतलब तू कहाँ सीरियस ले रहा है? मैं तो, मेरे को तो मजा आ रहा है तेरे को उंगली करने में, तू कहाँ जवाब देते फिर रहा है? मेनी टाइम पीपल डू दिस काइंड ऑफ थिंग ना। मैंने बहुत बार बताया, स्टॉप जस्टिफाइंग एवरीथिंग। क्लास में कितनी बार कहा है मैंने, किस किस को जवाब देते फिरोगे? एक्सेप्ट योर डिफीट एंड मूव ऑन, दैट्स इट। इवन टुडे दे आर क्राइंग, वो ईवीएम में, और एक आदमी तो ऐसा मिला, ऐसा लगा इसको ना गीला जूता करके से मुंह पे ना मारा जाए, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में पद पर बैठा हुआ है। ओके ओके करके सुन लिया। व्हाट ही वाज सेइंग दैट ईवीएम में एक चिप होता है, उसका कंट्रोल 2 लोगों के पास होता है, एक होम मिनिस्टर और एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैंने कहा तीसरा तेरे बाप के पास भी होगा साले, उल्टी उल्टी बातें करते हैं अनपढ़ लोग, गधे। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग कि हम हारे हैं, नॉट एक्सेप्टिंग। और कांग्रेस पार्टी का इंदौर के बच्चे को पता था कि इंदौर की 5 विधानसभाओं का क्या रिजल्ट आने वाला है। इंदौर विधानसभा वन, एवरीवन वाज अवेयर ऑफ दिस, द संजय शुक्ला इज गोइंग टू बी डिफीटेड बाय कैलाश विजयवर्गीय, सबको पता था। इंदौर 2, एवरीवन वाज अवेयर, एवरीवन वाज अवेयर, रमेश मेंदोला विल विन दिस इलेक्शन अगेन। इंदौर 3, बच्चे को पता था गोलू शुक्ला इज गोइंग टू विन द इलेक्शन। सिर्फ मार्जिन देख रहे थे लोग, कितने मार्जिन से जीतेंगे। इंदौर 4, कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं इंदौर 4 में उतारने के लिए, बीजेपी वालों ने अपना भेजा था आदमी कि जा उधर कैंडिडेट नहीं हो जाके चुनाव लड़ ले। वो आया आदमी, चुनाव लड़ा, हार के फिर से बीजेपी ज्वाइन कर ली। कैंडिडेट दिए उन्होंने कि उनके पास है नहीं, तू जाके लड़ ले। वो आया, वेदा कॉम्प्लेक्स जिसमें क्लासेस लगता था अपना, उसके ऑनर, बीजेपी का आदमी था। ही जॉइन कांग्रेस, कॉन्टेस्टेड इलेक्शन, डिफीटेड बाय हिज बिजनेस पार्टनर एंड अगेन जॉइन बीजेपी। इंदौर 5, 25 साल से उनका विधायक है वहां पर, 25 साल से विधायक है। ओनली इंटरेस्टिंग डिफीट इज राहू, कि जहां पर जीतू पटवारी चुनाव हार गए, और वहां जाकर राहू में जाकर थोड़े से लोगों से मिलो, बातें करो तो समझ में भी आ जाता है कि आदमी चुनाव क्यों हार गया। इवन आफ्टर दैट पीपल ऑफ कांग्रेस आर क्राइंग, वो मशीन में क्या है, गड़बड़ है। मशीन में गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं है, गड़बड़ आप में ही है कहीं पे। नॉट एक्सेप्टिंग देयर डिफीट। आई एम गेटिंग दिस।
इनको चाहिए गरम तेल की कढ़ाई में इनको जो पहले पनिशमेंट दिया जाए कि साले उल्टी बातें करना बंद करो। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट में बैलेंस नहीं है। आई होप गेटिंग दिस। अब इसके ऊपर आपको एक बहुत एथिकल क्वेश्चन पूछ दे एमपीपीएससी, तो पूछ दे यूपीएससी इज नॉट इंटरेस्टेड इन इंसिडेंट्स ऑफ इंदौर बट एमपीपीएससी कुड बी, कि इंदौर में ये हुआ। बीजेपी का गवर्नमेंट तो शायद ना भी पूछे, बट इनडायरेक्टली कि पूछ भी ले तो आपको लिखते आना चाहिए कि व्हाट आर द इथिकल कंसर्न्स इन्वॉल्व हियर। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के बीच में बैलेंस दिखाई नहीं दिया। दीज एडमिनिस्ट्रेटर हैज बीन रिवॉर्डेड मल्टीपल टाइम फॉर द cleanliness, but when 35 people lost the life, what has happened? अभी तक तो मिल नहीं रहा है that who was the person responsible for this. I hope you're getting this. So here reward and punishment क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब हो गया तो अब देख ही रहे हो, मुद्दा खत्म, 35 लोग मर गए। और मैं आपको कितनी बार पहले भी बताया हूँ कि इंदौर में बहुत कॉमन है ये, नर्मदा के पानी में नाले का पानी आता है। एंड गो टू द पीपल एंड आस्क कि आंटी जी क्या कर रहे हो, तो आंटी जी कहती है कि अरे बेटा शुरू के 10 मिनट आता है नाले का, फिर तो क्लीन पानी आता है। मतलब फिर क्या करते हो, 10 मिनट बाहर फेंकते हैं फिर भर लेते हैं। तो शिकायत क्यों नहीं करते हो? अरे बेटा आ रहा है पानी, वही थोड़ा है क्या? आई टोल्ड यू दिस स्टोरी मल्टीपल टाइम में। 35 लोग तो बहुत बाद में मरे हैं, ये तो मैं कब से बताते आ रहा हूँ। इट इज रेगुलर इवेंट दैट हैपेंड इन इंदौर, बट स्टिल इंदौर इज अ स्मार्ट सिटी। कौन कह रहा है स्मार्ट सिटी? जो मध्य प्रदेश के गांव देहात से जो लोग आते हैं रात को 2 बजे तक लाइट देखते, इसलिए स्मार्ट सिटी बोलते हैं वो, इसलिए स्मार्ट सिटी बोलते हैं वो, नो अदर पर्पस। they don't have their own transportation system, they are dependent on public transportation system, या फिर 11 नंबर से चलते हैं वो। तो एक बार बाइक लेकर निकल जाओ इंदौर शहर में तो पता चले तुमको कि इंदौर का क्या हाल है। तो इंदौर कितना स्मार्ट है इसके ऊपर भी डिबेट है। अब इस पर आप सर्च करते रहिएगा कि स्मार्ट सिटी मिशन का क्या हुआ, 15 स्मार्ट सिटी हमने बना ली क्या, और जिनको हमने स्मार्ट बोला वो कितना स्मार्ट है। स्मार्टनेस की डेफिनेशन क्या है? स्मार्टनेट की डेफिनेशन होना चाहिए क्या? गवर्नेंस। स्मार्टनेस की डेफिनेशन होनी चाहिए क्या? विमेन एम्पावरमेंट, रोल ऑफ विमेन इन ऑल द इंस्टीट्यूशंस। स्मार्टनेस की डेफिनेशन होना चाहिए एजुकेशन, व्हाट वी आर डूइंग इन एजुकेशन। आई होप यू आर गेटिंग दिस। क्या एजुकेशन सिस्टम है? डीएवीवी के बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पर आकर बैठे हैं। क्या हैसियत है डीएवीवी का बताओ? कहने को 1964 में बना हुआ एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। पीपल आर एनरोलिंग इन डीएवीवी। एक एक कमरे के इंस्टीट्यूट उसके छाती पर बैठे, बोले तेरे में दम है तो रोक ले। उसके सारे बच्चे उन इंस्टीट्यूट्स में जाकर पढ़ रहे हैं। अरे बीए वाले तो पढ़े कम से कम जाके डीएवीवी में। दे आर स्टडिंग इन प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। both university and institutes are operating in the same area. डीवीवी में एडमिशन लिया, स्टडिंग इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। क्या हैसियत है डीवीवी का? वाई वी आर स्मार्ट? हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नेंस, विमेन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, वेयर वी आर स्मार्ट। सो वी हैव टू फिक्स द डेफिनेशन ऑफ स्मार्टनेस। यस और नो? इथिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पे। यू मस्ट बी कैपेबल इनफ टू जनरेट थॉट्स एंड एनालाइज इट। कहीं उस पर स्टार करके लिख लो, उस पर रिसर्च करना। इंदौर का बहुत बड़ा केस है ये, मैं तो यहाँ से पासिंग रेफरेंस दे दिया है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, न्यू पॉइंट, सेंसिटिव ट्रेनिंग। सेंसिटिव ट्रेनिंग, सेंसिटिव ट्रेनिंग, रेगुलर ट्रेनिंग program must be conducted for ethical governance, emotional intelligence in governance, respecting diversity, human rights and empathy. Human rights and empathy. Human rights and empathy. Are you getting this? Yes or no? Such kind of training sessions must be conducted. For whom?
एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्वेंट, एडमिनिस्ट्रेटर्स, फाइन। कितने कंडक्ट होते हैं? 0। कितने कंडक्ट होते हैं? 0। इंदौर पुलिस इज बिजी इन टेलिंग यू पीपल किस पे क्लिक करना है, किस पे क्लिक। आईपीएस रैंक के ऑफिसर लगे हुए थे उसमें फॉर 15 डेज। 15 दिन का प्रोग्राम चल रहा है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। वो सिखा रहे किस पे क्लिक करना है, किस पे क्लिक नहीं करना है। इसके लिए सीनियर पुलिस ऑफिसर्स आर इन्वॉल्व इन दिस। शायद इनकी जगह कहीं और है, बहुत सारे सेंसिटिव मुद्दे हैं इंदौर शहर में, उस पर इनको लगाना चाहिए, ना कि ये बताने में क्या क्लिक करना है, क्या क्लिक नहीं करना है। प्रायोरिटीज। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोशन ऑफ प्रोफेशनल वर्क कल्चर। प्रमोशन ऑफ प्रोफेशनल वर्क कल्चर। प्रोफेशनल वर्क कल्चर based on transparency, based on transparency, accountability, impartiality, citizen centric governance, citizen centric governance, timely delivery of services, timely delivery of services, and standard of procedures, SOPs, standard of procedures, SOPs, standards of procedures. Yes or no? Professionalism must be there. Do we have professionalism? No. Do we respect professionalism? No. है ही नहीं, कहाँ दिखता है? आपकी पर्सनल लाइफ में ही नहीं है। No professionalism in personal life. Then how you could expect professionalism in these institutions? People are entering into these institutions from society only. First, our society must be professional. Yes or no? कोई बुरी बात नहीं है प्रोफेशनल लाइफ जीने में. It's good. You must draw a proper line that this is my professional arena, this is my personal arena. There must be professionalism. I hope you're getting this. But what we notice, no professionalism. No professionalism. We are not trained like this. We are not trained like this. अभी ट्रेनिंग ऐसा मिला ही नहीं. Now we people are dealing in a professional environment. We people are dealing in a professional environment. We could laugh, we could talk on sensitive issues, we could do everything, but we know there is a line in between us. I should never cross the line and you should never cross the line. There must be professionalism. In everything, professionalism is required. Yes or no? Unfortunately, our society has not reached this. Next point, new point. Enforcement of conduct rules. Enforcement of conduct rules. Next point, new point. Capacity building. Capacity building. Capacity building, etc. etc. Now give a small heading, informal interventions. Informal interventions. Right, first point, social persuasion. Social persuasion. Second, increasing representation of women, SC, ST, women, SC, ST, backwards, minorities, to promote diversity.
and to reduce institutional biasness, and to reduce institutional biasness. Next point, new point, citizen interactions. Citizen interactions. Next point, new point, ethical leadership. Ethical leadership. etc etc etc. Fine, full stop, change the paragraph. There is a debate. There is a debate regarding. There is a debate regarding bureaucratic and democratic attitude. Bureaucratic and democratic attitude. Bureaucratic attitude. Bureaucratic attitude often develops certain rigidities. Bureaucratic attitude often develops certain rigidities that may conflict with democratic values. Democratic values. Democratic values. Democratic values. When we talks about bureaucratic attitude, when we talks about bureaucratic attitude, we observe two components. Two components, positive and negative. Positive and negative. Positive component means, पैराग्राफ चेंज करके लिखना चाहिए. Positive component means rational, neutral, rational attitude, neutral attitude, rule of law, rule of law, service oriented, service oriented, uniformity of treatment, uniformity of a treatment. Change the paragraph. Negative component means, negative component means red tapism, red tapism, red tapism, red tapism usually tied on the government files. Go to this table, you have to move to table number 3. Go to table number 3, they will ask you have to move to counter number 4. Go to counter number 4, they will ask you have to move to counter number 8. घूमते रहो, शाम हो जाएगी, घर आ जाओ. रेड टैपिज्म. जब तक उसमें वजन ना पड़े वो फाइल सही ठिकाने लगती नहीं है. दैट्स कॉल्ड रेड टैपिज्म. कॉमा स्टेटस को, स्टेटस को, inefficient, inefficient, elite attitude, elite attitude, elite attitude, too much
rule oriented, too much rule oriented, alienation from society, alienation from society, lack of innovation, etc. etc. Because of these components, too much rule oriented. If you are not able to present this document, this service could not be provided to you. मर भी जाओ तो कुछ नहीं. We have rule, अगर आपका घर 5 फीट आगे है, it is to be destroyed. According to rule you are correct, but you must have empathy. You must have empathy. कि ठीक है, 7 days period has been given to you. अभी छावनी में इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, notice has been issued 20 years ago. Notice has been issued 20 years ago. Repeatedly such notices has been served. But no one takes government notices seriously in our country. People like it, तो 20 साल पहले भी आया था notice. And then suddenly, crane went to Chhavni and they destroyed the apartments. There they become too much rule oriented. No, we have the order. We have the order. Suddenly on one morning, you could see many such equipments went to Chhavni and they destroyed the apartments of the people. And obviously, they were legally correct. They were legally correct. Too much rule oriented. If you are not able to present this document, this service could never be provided to you. Yes or no? Arey, many times it happens in this academy. Yaar. You are not depositing fees on time. So what happens? They give you a slip. They give you a slip na. For few days, जितना भी है आपका personal connection, उस पर depend करता है your bargaining capabilities. But this is flexibility na. Too much rule oriented means what? Now today your services has been stopped. We can't help you. We are not wrong. Arey, we need some flexibility. We need some empathy. I hope you're getting this. Yes or no? Too much rule oriented. I will not entertain you people after 2:30. I will not entertain you people after 2:30. And now someone has asked me something. I can't be like this na. मैं कुछ नहीं कर सकता. मैं कुछ नहीं कर सकता. आप तो ऐसे हंस रहे हो, शायद आपने सच्चाई पकड़ ली कि आपने हमको 2:30 के पहले भी तो एंटरटेन नहीं किया. तो तुमने देवी जी आज तक कुछ पूछा भी तो नहीं, कुछ लिखा भी तो नहीं, कुछ दिखाया भी तो नहीं, खुद के एफर्ट्स तो किए नहीं. यू पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एकेडमी वाले हमारे लिए आईएएस का पोस्ट ला कर दे दें. अरे एकेडमी वालों को नहीं मिला, तुमको कैसे ला के दे देंगे? यू हैव टू वर्क हार्ड. दुकान पे मिलनी टॉफी थोड़ी है, गए ले लेंगे 5 रुपए में, लाख रुपए भर दिए अब तो अकेडमी वाला सब कर दे. अरे यू हैव टू डू एफर्ट्स. यू हैव टू डू एफर्ट्स. इतना इजी थोड़ी है. बट पीपल बिहेव्स लाइक दिस. हमने तो एकेडमी को पैसा दे दिया, नाउ एवरीथिंग इज टू बी डन बाय एकेडमी. ऐसा ही होता तो इतनी एकेडमीज नहीं होती दोस्त. गली गली में घूम रहे होते फिर तो लोग. यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स. अब वो लड़की को देख लो, शी केम टू मी सर, नहीं लिख पा रही हो मैं आंसर. बताओ कौन सा आंसर नहीं लिख पा रहे हो? ये तो वही बात होगी, डॉक्टर के पास गए मैं बीमार हूं, तो लिखा क्या हो रहा है? तो तू किस बात का डॉक्टर है बे? तू बता मुझे क्या हो रहा है. अरे यू हैव टू टेल दी डॉक्टर पेट दुख रहा है, देन ही विल स्कैन योर स्टमक. मतलब घुटना ठोक ठोक के देख रहा है वो, सब ठीक है, तुम बता ही नहीं रहे हो कि दिक्कत तो कंधे में है. पीपल बिहेव लाइक दिस. मेरे को नहीं आ रहा आंसर. कौन सा नहीं आ रहा वो तो मुझे नहीं पता अभी, बस नहीं आ रहा. कौन सा नहीं आ रहा? हैव यू अटेम्प्टेड अ क्वेश्चन? हाँ तो बताओ. वो नहीं है तो कल लेकर आओ. फिर वो कल आए ही नहीं. आई एम नॉट प्रोवोकिंग यू कि पता चले आप कल 10 पन्ने लाकर दे दो मेरे को, ये ले. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. हाँ, आई नेवर क्रिएट ट्रबल फॉर माई सेल्फ.
I never create trouble for myself. But someone approaches me, so I help them. जो मेरे बस का होता है, I could do that. But I never provoke. ऐसा कर ले, वैसा कर ले. I always say, तुम मरना चाहोगे, सबसे पहले धक्का मैं ही दूंगा. मुझे तुम लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, जैसे तुम लोगों मुझसे कोई लेना देना नहीं है. We are dealing in a professional environment. That's it. कहीं गलत हो तो बताओ. I hope you're getting this. Anyway, आपका डाउट क्लियर है. चेंज द पैराग्राफ. क्या लिखा था हमने? सॉरी, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ दीज कॉम्पोनेंट. अब भूल गया यार मैं क्या बोल रहा था. माइट बी वी आर राइटिंग कि बिकॉज ऑफ दीज कॉम्पोनेंट ब्यूरोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में लड़ाई होती है ना. बिकॉज ऑफ दीज कॉम्पोनेंट there are conflicts between bureaucratic attitude and democratic values. Bureaucratic attitude and democratic values. For instance, इस तरफ आप ऐसे कर सकते हो. On this side you can write bureaucratic attitude, and there you can write democratic values. Bureaucratic attitude, rule first, सबसे पहली प्रायोरिटी रूल को. डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, सिटीजन फर्स्ट. शासन प्रशासन लोगों के लिए है तो लोगों को प्रायोरिटी मिले. रूल फर्स्ट. और डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या है? सिटीजन फर्स्ट. यस और नो? ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड बेस्ड ऑन हायरार्की. मैंने आपका काम कर दिया है, ये फाइल ऊपर चली गई है. अब कितनी ऊपर गई है? वो ऊपर ही तो नहीं चली गई, कभी काम ही नहीं होगा आपका, क्योंकि फाइल उसने तो कहां कर दी? ऊपर चली गई है. ऊपर से ऑर्डर नहीं आया है, ऊपर से ऑर्डर आया है. इट इज ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड बेस्ड ऑन हायरार्की. बट डेमोक्रेटिक एटीट्यूड मीन्स व्हाट? Participation, not hierarchy. Participation. Third, procedure oriented. You know procedure oriented? आपका आईडी कार्ड गुम गया. Now there is a process. 500 रुपये जमा करो, ये करो, वो करो, फिर 5 दिन में आपको मिलेगा. प्रोसीजर ओरिएंटेड. डेमोक्रेटिक वैल्यू आउटकम ओरिएंटेड. प्रोसीजर तो ठीक है सर, आउटकम क्या है? वी नीड आउटकम. तो तुरंत एक पर्ची बनाकर दे दी कि तुम्हारा आईडी कार्ड खो गया है, लेकिन जाओ क्लास अटेंड कर लो इस पर्ची से, लेकिन 5 दिन लगेगा आईडी कार्ड जनरेट होने में. यस और नो? व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल? 3 days बैक आई सॉ अ गर्ल फाइटिंग विद दोस पीपल. क्या आपके यहाँ कैमरे नहीं है क्या? एक आईडी नहीं ढूंढ सकते? तो उसको बोला, देवी जी बहुत पापी है ना हम लोग, आपका हीरे का हम आईडी नहीं ढूंढ सके. आप तो भांग खाकर आती हो, आपका गिर गया, आपकी क्या गलती है इसमें? These stupid people are responsible. कि उस लड़की का आईडी कार्ड गिर गया, लेकिन इन मूर्खों से आईडी कार्ड नहीं संभला, 500 रुपये ले लिया उससे. बताओ, वो गलत थी कहीं लड़की? कहीं गलत थी लड़की? वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी. सड़क चलते सोने की चेन मेरी गिर गई तो पुलिस वाले गधे हैं, मैं गधा हूं? पुलिस वाले गधे हैं कि वो एक सोने की चेन ना ढूंढ सके मेरी. इस किस्म के लोग हैं दुनिया में. आई होप यू आर गेटिंग दिस. उसको बोला, देख तेरे को क्लास रोकने से तो नहीं बोलोगे, पर्ची ले जाकर बैठ जा. आउटकम ओरिएंटेड. डेमोक्रेटिक वैल्यू तो यही हुई ना कि आप जिस पर्पज से क्लास में आए हो वो फुलफिल कर लो. आपको स्लिप दे दिया है, दिखा देना, अंदर जाने देगा वो आपको. आईडी कार्ड बनने में तो लगेगा 4-5 दिन. आई होप यू आर गेटिंग दिस. अगर उसको कह दिया जाता कि मैडम ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, प्रोसीजर ओरिएंटेड, फर्स्ट देयर इज अ प्रोसेस, आईडी कार्ड बनेगा 3 दिन में, आईडी कार्ड होगा तभी एंट्री मिलेगी सर, दीज आर द प्रोसेसेस, तो वो लड़की कुछ नहीं कर पाती. क्या कर लेती बताओ? दिस इज द प्रोसेस. And this process has been delivered to you in the very first on the very first day of this class.
आपको बोला आपको आईडी कार्ड मिलेगा, इधर पंच करना है, फिर आपको आईडी कार्ड दिखा के एंट्री होगी, ये तो आपको बताया होगा ना, बताया ही होगा ना। आप पंच करते हो नहीं करते हो आपकी हेडक है, आईडी कार्ड तो चेक करते हैं लोग। अगर ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड दिखाया जाए तो प्रोसीजर ओरिएंटेड, यहाँ चपड़ चपड़ मारकर चाटा मारेंगे, भाई यहाँ से आईडी कार्ड तूने घुमाया है, 500 रुपये जमा कर, बनेगा 3 दिन में, वी कांट हेल्प यू। इन लोगों ने क्या किया, स्लिप बना कर दे दी। आउटकम ओरिएंटेड कि मैडम हमसे बहुत बड़े पाप हो गया कि आपका बहुमूल्य आईडी कार्ड हम ढूंढ ना सके, आपकी गलती नहीं, आपने घुमा दिया, ये तो इंस्टीट्यूशन वालों की गलती है कि ढूंढ ना सके। आप ये पर्ची ले जाइए और विराजमान हो जाइए क्लास में जाकर, जब तक आपका बनता रहेगा। अब आप बताओ, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड चाहिए, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड चाहिए? डेमोक्रेटिक एटीट्यूड चाहिए, आउटकम ओरिएंटेड, यस और नो? बट फॉर दिस वी हैव टू बिहेव लाइक अ डेमोक्रेटिक पर्सन, वी हैव टू बिहेव लाइक अ democratic person. If you are behaving like a non-democratic person, then democratic values could not be served in the plate. और लड़की का जिस तरीके का रवैया था, मुझे तो नहीं लगता कि वो स्लिप की हकदार थी, बट शायद नीचे वाले लोग भी बिजी रहे होंगे और वो लड़ाई झगड़े के फेवर में नहीं होंगे, तो उन्होंने दे दी, वरना दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस स्टफ। एक आध तो कोई बड़ा ही होगा नीचे जाके। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, administrative control. Administrative control, here you can write public empowerment. Administrative control, public empowerment. Agree? Here you can write stability, status quo. Stability, status quo. Bureaucratic attitude. Democratic attitude means change in reforms. Change in reforms. तो इंदौर में क्या हुआ, स्टेबिलिटी, एक अधिकारी इधर का उधर नहीं हो पाया, स्टेबिलिटी, बट हमको क्या चाहिए था, रिफॉर्म्स, चेंजेस। वी वांट सिविल सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, वी डोंट वांट ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, यस और नो? या फिर वी वांट मिक्सिंग ऑफ द टू, जैसे ये लोग कर रहे एकेडमी वाले, रूल्स आर टू बी फॉलोड बट शॉर्ट टर्म के लिए चल भाई ये भी ले ले, यस और नो? Flexibility is needed. Many more things are there. हम लोग आज बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. We'll do it tomorrow. Thank you.